देखिए जी, अमिताभ बच्चन जी का एक ना बहुत बड़ा डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। मगर मैं कहूँगा इस डायलॉग ने हमारे पुरुषों की, मर्द की सबसे ज़्यादा बुरी गति कर दी। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल कर दिता गया है, पर ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 15 21 ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ भाजपा ਦੀ सरकार हो, कोई सरकार उस पासे काम नहीं करना चाहती। देश के अंदर अगर आप देखेंगे 49 से ज़्यादा कानून महिलाओं के लिए है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ कानून बिल्कुल होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के पास एक भी कानून नहीं। हमारा ये राइट फॉर मेन कमीशन है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक लॉन्गेस्ट बाइक राइड है अब तक की, जो किसी कॉज के लिए हो रही है। और इसके लिए हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है मेन कमीशन। हर साल महिलाओं के लिए लाखों करोड़ रुपए उनके उत्थान के लिए खर्च होता है, मगर वहीं पुरुषों के लिए सरकार के पास एक रुपए भी नहीं है। हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि जैसे आप महिलाओं के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, वैसे आप पुरुषों के बारे में सोचें। वो भी इस देश का नागरिक है, उसके भी अधिकार है, उसके भी ह्यूमन राइट्स है। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जी है वो बाइक राइड है, जी डिमांड कर रही है मैंस कमीशन इंडिया। जिदा असी कहते हैं कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है। जब वो कमाने योग्य नहीं रहते, उनके शरीर खराब हो जाते हैं, उन्हें महिलाएं घर से बाहर निकाल देती हैं। उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर ही नहीं है। वो बेचारे घर धक्के खा रहे होते हैं, कुछ उन पर होता नहीं है। ऐसी कॉल्स आती हैं। इसी तरीके से जो हमारी यंग जनरेशन है, आईटी है, डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस ऑफिसर तक भी जो है झूठे मुकदमों का शिकार हो जाते हैं। अफसोस की बात है कि उनके भी कोई सुनता नहीं है, चाहे वो इतने पढ़े लिखे समाज है। और उनसे क्या होता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनसे लाखों करोड़ रुपए की फिर एलिमनी मांगी जाती है, मेंटेनेंस मांगी जाती है। हमारे देश के 2009 का डाटा था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का, जो ये बताता है 53.4 बॉय चाइल्ड का सेक्सुअली अब्यूज होता है लड़कियों से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्कूलों में ड्रॉप आउट लड़के होते हैं। तो ये आने वाला वक्त है, अगर पार्टियां एक तरफा ही बात करेंगी तो हमें भी सोचना पड़ेगा, और ये वक्त जरूर आएगा कि इनके लिए दिक्कतें खड़ी होती जाएंगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 40+ NGOs ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 2005 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਫॉर ਮੈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 08882498 ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 5000 ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 27 ਤੇ 30 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਲਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਲਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਖਾਨ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਈਕਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਆਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੂਮੈਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਜਟ ਵੂਮੈਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੀਮਸ ਵੂਮੈਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 40 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਸਥਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 올ਡ ਵਾਈਨ ਇਨ ਨਿਊ ਬੋਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 21 ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਫਸਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੀਸੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੇਲ ਸੁਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਗਏ, ਬਿਹਾਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਗਏ, ਗੋਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਆਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਗਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਗਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਮਨਾਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 47-46 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਯੋਗ ਤੇ ਮੈਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਦਾਂ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਰਦ ਤੇ ਜਨਾਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਆਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜਨ। ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੂਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रियेश भार्गव है जी। बिल्कुल, मैं यही गल कही है जी, अवेयरनेस कर रहे हो, किस चीज़ को लेके कर रहे हो? देखिए जी, अमिताभ बच्चन जी का एक ना बहुत बड़ा डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। मगर मैं कहूँगा इस डायलॉग ने
हमारे पुरुषों की, मर्द की सबसे ज़्यादा बुरी गति कर डाली। देश के अंदर अगर आप देखेंगे 49 से ज़्यादा कानून महिलाओं के लिए है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ कानून बिल्कुल होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के पास एक भी कानून नहीं है। हमारे देश के अंदर जानवर, पेड़ पौधे, मतलब इन्वायरमेंट, हर एक के लिए आयोग है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण देश का सबसे बड़ा जो टैक्स पेयर है उसके पास कोई आयोग नहीं है। अगर आप देखेंगे हर साल महिलाओं के लिए लाखों करोड़ रुपए उनके उत्थान के लिए खर्च होता है, मगर वहीं पुरुषों के लिए सरकार के पास 1 रुपये भी नहीं है। तो यही सबसे दुखद की बात है। हमारा ये एक राइट फॉर मेन कमीशन है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक लॉन्गेस्ट बाइक राइड है अब तक की, जो किसी कॉज के लिए हो रही है। और इसके लिए हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है मेन कमीशन। हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि जैसे आप महिलाओं के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, वैसे ही आप पुरुषों के बारे में भी सोचें। वो भी इस देश का नागरिक है, उसके भी अधिकार हैं, उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, हर 4.5 मिनट में एक लड़का सुसाइड कर लेता है। ये आंकड़ा महिलाओं से 3 गुना ज़्यादा है। 1,22,000 लड़के हर साल सुसाइड करते हैं। अगर आप उनका रेशो देखेंगे, जो रेशो महिलाओं का रेशो है वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, वो एक तरीके से एक ही लाइन पे चल रहा है। महिलाओं का ग्राफ सीधा ऊपर, पुरुषों का सुसाइड का ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है डोमेस्टिक इश्यूज। अगर किसी पुरुष को घर में कोई परेशानी होती है, कोई भी तरीके का इश्यूज आता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। वो अगर कोर्ट में जाता है तो उसके पास कानून नहीं, पुलिस के पास जाता है तो उसके पास कानून नहीं है, तो वो आखिर में वो बेचारा जाएगा, वो सुसाइड कर लेता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे आप महिलाओं के लिए बढ़िया काम कर रहे हो, जानवरों, पेड़ पौधों के लिए कर रहे हो, हम पुरुष भी जो है देश के नागरिक हैं, उनके लिए भी आप पुरुष आयोग बनाएं। ਪਰ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? जनाब, हमारे पास हर महीने 5 से 6,000 कॉलें आती हैं जो इन्हीं तरीके के पीड़ित पुरुष हैं। और ये 17-18 मतलब 13-14 साल के बच्चों से लेके 80-90 साल के वृद्ध पुरुषों तक की कॉल्स होती हैं। बच्चों के लिए इतना सेक्सुअल एब्यूज़ लड़कों के साथ होता है, बट उनके लिए वो बेचारे कहीं भी बात करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। ऐसे ही अगर आप बुज़ुर्गों को लेके, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, उन लोगों को जैसे आजकल वो कुछ सरकार लोग आपने वादे करती है 2% आपको हम छूट दे देंगे, आप महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी कर लो, उसका खामियाजा हमारे बुजुर्ग झेलते हैं। जब वो कमाने योग्य नहीं रहते, उनके शरीर खराब हो जाते हैं, उन्हें महिलाएं घर से बाहर निकाल देती हैं। उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर ही नहीं है, वो बेचारे घर धक्के खा रहे होते हैं, कुछ उन पर होता नहीं है। ऐसी कॉल्स आती हैं। इसी तरीके से जो हमारी यंग जनरेशन है, IT है, डॉक्टर है, IAS है, IPS ऑफिसर तक भी जो है झूठे मुकदमों का शिकार हो जाते हैं। अफसोस की बात है कि उनकी भी कोई सुनता नहीं है, चाहे वो इतने पढ़े लिखे समाज है। और उनसे क्या होता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनसे लाखों करोड़ रुपए की फिर एलिमनी मांगी जाती है, मेंटेनेंस मांगी जाती है। कोर्टों के अंदर हालत ये है कि सुनवाई नहीं होती, वहाँ पर भी बराबरी से नहीं देखा जाता है, वहाँ पर भी जेंडर बायस है। वो भी महिलाओं को एक स्पेशल प्रिविलेज देते हैं, पुरुषों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वहाँ पर भी उनकी आमदनी होती है 10-15 हज़ार रुपये, मेंटेनेंस बांध देते हैं 8-8 हज़ार रुपये। 15 हज़ार कमाने वाला 8 हज़ार अगर उसको दे देगा तो अपने माँ बाप को कैसे पाले, खुद को कैसे पाले। मगर हमारे यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क ही नहीं होता, सिर्फ जो है कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है जुडिशरी के लिए कि हम चेक करें कि भाई आप कैसे चेक करिए, आपने कैसे किया। उसका खामियाजा भी बहुत है। हर जगह केवल और केवल लड़का पिस रहा है और वो सुसाइड कर रहा है। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। देखिए सर, कोई भी स्पाउस है, अगर आप इंटरनेशनल बात करेंगे वर्ल्ड के अंदर जितने भी हमारे कानून थे, ये बाकी सब कंट्रीज से प्रभावित हैं। हर जगह पे न्यूट्रल चीज़ें हैं। अगर महिला की आमदनी ज़्यादा है तो पुरुष को उसमें से मेंटेनेंस ले सकता है, मगर हमारे देश में ऐसा नहीं है। कानून हमारे देश में है मगर होता नहीं है। अगर पुरुष पैसे कम कमा रहा है, महिला ज़्यादा कमा रही है और वो कुछ भी करेगी तब भी मेंटेनेंस अवॉर्ड कर दी जाती है। तो ये बहुत दुखद है। हम ये कहते हैं कि जिसको ज़रूरत है आप बराबरी की बात करो। अगर कोई महिलाएं, कोई अपंग है या वो कमाने योग्य नहीं है, आप उसे मेंटेनेंस दो। मगर अगर वो पढ़ी लिखी है, कमाने योग्य है, तो आप उससे क्यों नहीं पूछते कि तू कमाती क्यों नहीं है। इतने लाखों रुपए खर्च करके उसे पढ़ाया गया तो वो उस चीज़ को यूज़ करे, देश की तरक्की में हाथ बटाए।
क्यों होता है कि वो कमाने योग्य होती है, उसके बाद भी वो जाके मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर देती है, ये चीज़ गलत है। हम अगेंस्ट नहीं है महिलाओं के लिए, हम कहते हैं बराबरी से सबको ट्रीट किया जाए। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? जनाब, महिलाओं के लिए 49 कानून से लेके 52 कानून है, पुरुषों के पास एक भी कानून नहीं है। आप बताओ कैसी बराबरी हुई? महिलाओं के लिए 1 लाख करोड़ का बजट है, उनके उत्थान के लिए पुरुषों के पास एक नहीं है। अगर आप देखो, सबसे ज़्यादा दुखद जो है हमारे देश के अंदर वो पुरुष की हालत है। आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हो, उसके लिए कितना बड़ा बजट है, कितने बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं। क्या आपने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कभी पढ़ा, सुना? सरकार के पास कोई योजना नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा पुरुष मरते हैं इन चीज़ों से। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਗ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ? जनाब देखिए, आर्टिकल 14, 15 और 21 वो बराबरी की बात करता है कि किसी भी देश के नागरिक को आप भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर 2009 का डाटा था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का, जो ये बताता है 53.4 बॉय चाइल्ड का सेक्सुअली अब्यूज होता है, लड़कियों से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्कूलों में ड्रॉप आउट लड़के होते हैं। तो ये जो नारा है ना, लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक तरीके से बायस है, महिलाओं को लुभाने का वादा है। ये नारा होना चाहिए बच्चे बचाओ बच्चे पढ़ाओ, दोनों को ज़रूरत है। दोनों देश के नागरिक दोनों प्यारे होते हैं। बिल्कुल। और हमारी सरकारों ने जो आज तक ये किया है ना कि जो भेदभाव करती आ रही है, आप मोदी गवर्नमेंट को देखें, जब पहली बार जब सत्ता में आए थे, हमें लगा था ये बहुत स्ट्रांग है, इनके पास इतना अच्छा बहुमत है, ये करेंगे अच्छा काम। मगर इन्होंने फिर ये जेंडर बायस तरीका चालू करा, केवल एक ही तरफ बातें करी। उसका खामियाजा आज देख ही रहे हैं, क्या कितनी सीटें कम हो गई। इन्होंने महिलाओं का रिजर्वेशन तक की बात करी, और सबसे ज़्यादा धोखा भी महिलाओं ने दिया इनको। बिल्कुल। आने वाले टाइम में हमारे जो लोग थे, जो जितने भी थे, जो नोटा का हम लोगों ने उपयोग किया, भारतवर्ष में नोटा का देखो कितना रेशो बढ़ गया। अगर आप देखेंगे, इंदौर का उदाहरण देख ले, लाखों वोट्स गए। तो ये आने वाला वक्त है, अगर पार्टियां एक तरफा ही बात करेंगी तो हमें भी सोचना पड़ेगा, और ये वक्त जरूर आएगा कि इनके लिए दिक्कतें खड़ी होती जाएंगी। धन्यवाद। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। देखिए जनाब, बाइक राइड के ऊपर जाने का मुद्दा सिर्फ यही है कि पूरे भारतवर्ष में हम सब लोगों से मिलते हैं। हमारा एक साइनिंग कैंपेन है जो हमारा change.org पे चल रहा है, उसके अंदर हम लोग सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी साइनिंग पिटीशन में हमारा भाग लें, जिसके बाद में हम लोग ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं संबंधित, उन सबको ये पिटीशन भेजेंगे। ਹੁਣ तक मतलब कितने कितने जा चुके ਤੁਸੀਂ? सर अब तक जो है ये 4 से 5 हज़ार लोगों ने अब तक हमारी साइन कर चुके हैं। और जो हमारी मिस कॉल एक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8882498498, उसके ऊपर अभी थोड़ा देखना बाकी है, उस पर भी हज़ारों की तादाद में नंबर्स आ चुके हैं। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ तक कितने कितने जा चुके हो? अच्छा, हम लोग जी दिल्ली से हमारी ये बाइक राइड चालू हुई थी, हम लोग लखनऊ यूपी, उसके बाद में असम, आपका कलकत्ता वेस्ट बंगाल टच करते हुए ओडिशा आए हैं, ओडिशा से आंध्र प्रदेश, आपका अपना उसके बाद में केरला के बाद में आपका महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, और आज हम लोग चंडीगढ़ में है सर। ओवरऑल मतलब इंडिया से घूम के जाओगे पूरा? बिल्कुल जी। अब जो हमारा ये आखिरी 10 दिन का ट्रिप रह गया है, जो ये अपना जम्मू कश्मीर और ये सारा जो एरिया है, लेह लद्दाख का होता हुआ, उत्तराखंड होता हुआ दिल्ली आएंगे सर। ओके, तो जान लगे मैसेज की दोगे थे? हाँ जी, मैसेज की दोगे जी ऑडियंस में? मैं जनाब एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मर्द को भी दर्द होता है। कृपया करके ऐसा ना करें कि आप अपने द्वेष के लिए, अपने बदले के लिए किसी पर भी झूठे आरोप लगा के महिलाओं को से झूठे आरोप लगाएं, क्योंकि इससे लड़कों की ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं। वो भी बेचारा किसी का बेटा है, वो भी आत्महत्या कर रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है, इसको देखना चाहिए। मर्द को भी दर्द होता है सर। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, पूरा ओवरऑल इंडिया घूम चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। जी शुक्रिया आपका। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, अवेयर कर रहे हो जी मर्दां नूं, की कहना चाहोगे इस बारे? जी हमने ये एक राइड स्टार्ट किया है दिल्ली से जी। हमारी राइड का मकसद है कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी पुरुष हैं उनको अवेयरनेस के लिए हमने ये राइड स्टार्ट किया है, ये हमारा कोज है।
ये इसमें हमने दिल्ली से स्टार्ट करके जी 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 ऑलमोस्ट कश्मीर टू कन्याकुमारी आप ऐसा कह सकते हैं। ये हमारी राइड के अंदर हमारा एक पर्पज़ है कि इस राइड से अगर किसी एक पुरुष की जान भी बचती है, जैसे कि आजकल वो आत्महत्या वगैरह कर लेता है, और हमारी अवेयरनेस से किसी की जान बचती है, तो ये हमारी राइड संपन्न हो जाएगी। जी ਤੇ ਹੁਣ तक कितने घूम चुके हो जी? अब तक हम दिल्ली से लेकर यूपी, सिक्किम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, चेन्नई, मद्रास, कन्याकुमारी करते हुए पुणे, बॉम्बे करते हुए अब आपके बीच में है। अब हम अभी हमारे सिर्फ कश्मीर और लेह लद्दाख बचा हुआ है, जिसको कंप्लीट करके हम 26 जून को जो दिल्ली में ही अपनी यात्रा संपन्न करेंगे।